yours, you are mine. I'm your cup, pour out your wine. I'm your candle, Lord, you make me shine. I am yours, you are mine. I am yours, you are mine. I'm your cup, pour out your wine. I'm your candle, Lord, you make me shine. I am yours, you are mine. Welcome to everyone who's watching our broadcast. हमारे कार्यक्रम को देखने वाले हर एक का हम स्वागत करते हैं इस समय। We are continuing in Colossians chapter 3. और कुलोस्यों की पत्री उसके तीसरे अध्याय में We हम came हैं to verse 10. और हम 10वें पद में आ चुके हैं। I want to read verse 10 again and get on to verse 11. एक और बार हम उस 10वें पद को पढ़ेंगे, उसके बाद हम 11वें पद से आगे बढ़ेंगे। Having put on the new man, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता Where जाता there है। is neither Greek nor Jew, उसमें ना तो यूनानी रहा और ना यहूदी, circumcision nor uncircumcision, ना खतना ना कथना रहित, barbarian, Scythian, और ना जंगली ना स्कूती, bond or free. ना दास और ना स्वतंत्र, But Christ is all and in all. केवल मसीह सब कुछ और सब में है। See, we need to really remember this. इस बात को हम हर समय याद रखें। Christ, there is no difference between Jew or Gentile मसीह में कोई अलगावपन नहीं है यहूदी और अन्य जातियों के बीच or में, anybody else. और कोई के जीवन में It makes no difference. उसमें कोई बदलाव नहीं है। Jesus died for all the peoples of the world. दुनिया के सभी लोगों के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान को दिया। And if you can believe that and receive his sacrifice अगर आप उसको विश्वास करके उसकी कुर्बान को मानते हैं as तो, your own, और अपने ही लिए, then you are placed in Christ तब आप मसीह में स्थापित किए गए and हैं you need to put on the new man. और आप उस नए मनुष्यत्व को पहन ले Believe that Christ is all and in all. और विश्वास करे मसीह सब कुछ है और सब में है। Then he says, put on therefore as the elect of God. Again, that's another definition of yours. Elect of God. और आगे बढ़कर कहता है कि इसलिए चुने हुओं के समान, जो आपके बारे में कहती है, God has elected you. परमेश्वर ने आपको चुना है। He's chosen you out of so many billions of people. करोड़ों लोगों के बीच में से आपको परमेश्वर ने चुना है। Chosen you to know the Lord Jesus. चुने गए हैं ताकि आप मसीह यीशु को जानने So that पाएं, he could adopt you as his own child. अपने ही संतान के तौर पर आपको गोद ले ले। That's why he's calling you elect of God, holy, beloved, and bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long suffering. Put on all these things. और वो कहता है कि चुने हुओं के समान, जो पवित्र है और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता को धारण किया है, इसको आप पहन ले अपने जीवन में। Forbearing one another, forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also और do यदि ye. किसी को किसी पर दोष देने की कोई कारण हो तो एक दूसरे को सह ले और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराधों को So, क्षमा किया। if you have put on the Lord Jesus Christ, अगर आप यीशु मसीह को धारण कर चुके हैं अपने जीवन you में, have all these qualities in you. तब ये सभी खूबियां आपके जीवन में If you पूरी find होगी। these qualities are not there in you, अगर ये खूबियां आपके जीवन में नहीं है तो if you're not kind, कभी भी आप करुणामय नहीं हो सकते दूसरों not से। merciful, अगर आप करुणामय नहीं है तो, you have no humbleness of mind if you think you're someone very great. अगर आप सोचते हो कि आप में दीन नहीं है, आप महान हैं, Meekness is not in you. और दीनता नहीं है आपके जीवन में, Long suffering is not in you. सहनशीलता नहीं है आपके जीवन If you are में, not forgiving one another, अगर आप एक दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं you're saying, I can't stand so and so, I hate that person. अगर आप कहते हो कि मैं उस प्रकार नहीं हो सकता, मैं उस व्यक्ति से घृणा करता हूँ Having a लगातार, quarrel with somebody, अगर आपको किसी के साथ झगड़ा हुआ है, then what must you remember? तब आपको क्या याद करना Remember, है? Jesus has forgiven आप me. याद करें कि यीशु ने आपको क्षमा किया I है। am going to forgive everyone. मैं हर एक को क्षमा करूंगा। I put on the new man which is just like Jesus. मैं उस नए मनुष्य को धारण करूंगा जो यीशु मसीह के समान है, Because he is kind, I am kind. क्योंकि वो दीन है इसलिए मैं भी दीन हूँ। Merciful, so I am merciful. वो करुणामय है इसलिए मैं भी करुणामय रहूंगा। Meek, so I am also meek.
उसमें नम्रता है, इसलिए मैं भी नम्र ही बना रहूंगा। Everything is because of who Jesus is. ये सब कुछ उस प्रकार होता है जिस प्रकार मसीह यीशु है। And he is in us and we are in him. यीशु मुझ में है और मैं उस यीशु में हूँ। Above all these things, he says in verse 14, put on charity. इन बातों के सभी ऊपर वो इस बात को कहता है कि आप धारण करो उस प्रेम को। Now what is this charity or love? It is the bond of perfectness. क्या है वो प्रेम? वो प्रेम जो सिद्धता को कटिबंध से बांध लो। So that's what we are called to walk in. इसीलिए हम बुलाए गए हैं उसमें चलने के लिए। Jesus died to perfect us. यीशु मसीह मरा हमें सिद्ध करने के लिए God the केवल। Father put us in Christ, so we are complete in पिता Christ. परमेश्वर ने हमें उस यीशु में डाला कि हम Now, सिद्ध हो if जाएं। Jesus is in you, अगर यीशु आप में है तो, you have love in you. और आपके अंदर में वो प्रेम है, God is the one who sheds love in our hearts by the Holy Spirit. और परमेश्वर ही है वो प्रेम को डालता है उस पवित्र आत्मा के You द्वारा। don't have to look here and there. हमें इधर उधर देखने की कभी जरूरत Jesus नहीं है। is love. यीशु प्रेम He है is living in you. और वो आप में रहता है। All you have to do is exercise that love which is in you. You show forth love. Tell yourself, I am created to love आप केवल everybody. इतना ही करें, जो प्रेम आपके अंदर में है उसको दिखाएं और अपने आप से कहें मैं प्रेम And when करूंगा। I show love, और जब मैं उस प्रेम को दिखाता हूँ, walking in the bond of perfectness, उस सिद्धता की उस चलन की ओर हमें ले जाती है वो बात। then he says, let the peace of God rule in your heart. तब वो कहता है कि मसीह की शांति आपके हृदय के ऊपर राज्य करे। Rule means it reign. नियंत्रण करने का मतलब है कि राज्य करे। Means all the time you have to guard your peace. उसका मतलब हर समय उस शांति का आप रखवाली You करें। must not allow your peace to be stolen away by the devil. कभी भी अनुमति ना दे कि शैतान उस शांति को उसमें से चुरा ले। How he steals the word from your heart first. वो किस प्रकार चुराता है? वो पहले उस वचन को चुराता है अपने हृदय से। Forgetting Jesus is your peace. आप भूलते हैं कि यीशु मेरा शांति And है, he bought your peace by his own precious blood. और भूल जाते हैं कि उसके लहू के द्वारा उसने शांति ले आई आपके जीवन में। And when you forget that, Satan has the right to attack you and to disturb your peace. और जब उस बात को आप भूल जाते हैं, शैतान के अंदर में वो हक होता है कि आपको तकलीफ दे उस प्रकार। But Paul is saying here, लेकिन पौलुस कहता है यहाँ पर, let the peace of God rule. That means we have a choice here. होने पाए कि परमेश्वर की शांति राज्य करे, उसका मतलब हम चुने क्या करना है। And you have to let that happen. You have a role to play. आपका एक स्थान है, आपको निर्णय करना है क्या करना है वहां पर। You must say, I will not be troubled. आप कहेंगे कि मैं तकलीफ में नहीं I will not be होऊंगा, anxious. मैं कभी चिंतित नहीं होऊंगा, I will not be disturbed. मैं कभी मुश्किल में नहीं पड़ूंगा। Jesus is in me. यीशु मुझ में है। I'm going to let the peace of God rule in my life. परमेश्वर की शांति मेरे जीवन के ऊपर राज्य करने पाए। And he says here, to the which also you are called in one body, and be ye thankful. और वो कहता है जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो और तुम धन्यवादी बने रहो। So don't allow the peace of God to be removed from your heart. तो कभी अनुमति ना दे उस शांति को अपने हृदय से बाहर जाने के And you लिए, be thankful, Lord, you are my peace and you're living और in me. धन्यवाद करते रहे कि यीशु तू मेरा शांति है, मुझ में ही रह हर So समय। be thankful is a command. धन्यवाद देते रहो, यह एक आज्ञा के तौर पर हम देखते हैं। It's given to us that we need to be thankful to God for all the great and wonderful things He's done to us by giving us Jesus. यीशु मसीह को देखकर जो कुछ छोटे और बड़े अद्भुत कार्य हमारे जीवन में किया है, उसके लिए हम हर वक्त धन्यवादी बने रहें। Let the word of Christ dwell in you richly. मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। This is another thing we have to do. ये एक और ऐसा काम है जो हमें This is करना है। not God's work. ये परमेश्वर का कार्य नहीं। God has given us the word. परमेश्वर ने अपने वचन को दिया We है have to हमें। take the word and plant it in our heart. उस वचन को लेकर हमारे हृदय में हम बो दें To speak it with our mouth. और अपने मुंह से उसको बोले। It's not enough to take the Bible and sleep with it under your pillow. ये काफी नहीं है कि उस वचन, उस बाइबल को लेकर तकिए के नीचे Some रखकर उस of पर us सोएं। read few verses in a day and then close the Bible and keep it away. और कुछ लोग एक दिन में कुछ आयतों को पढ़ते हैं, बंद करके रख देते If you हैं। want a rich life, अगर एक अधिकाई जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो, it's by fellowshipping with the Father and the Son through the word. और उस वचन के द्वारा जो पिता और पुत्र के साथ संगति कर सकते हैं। And this word says, let the word of Christ dwell in you richly. और वचन कहता है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने Why? दो। क्यों? Because when you have any problem, जब आपके जीवन में कोई भी you मुश्किल must होती see है, what is the word saying about that problem.
उस समस्या के बारे में आप देखेंगे कि वचन क्या कहता है, and then we must submit to the word. तब उस वचन पर अपने आप को समर्पित So करें। if the word is in your heart, अगर आपके हृदय में वचन है तो it's very easy to check and see what to do when a problem situation arises. जब तकलीफ होती है जांच कर सकते हैं उस वचन के आधार पर क्या है वो। See, it's saying here, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. और यहाँ पर कहता है कि मसीह के वचन को अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित। See, what happens when the word is in you? क्या होता है जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में है Scriptures make us wise unto salvation. और वो वचन हमें ज्ञान में उस उद्धार की ओर ले जाता है। All the benefits of salvation just flow into us. उद्धार की हरेक फायदे हमारे जीवन में उस समय से बहने लगती है, All through the word. और वो वचन के द्वारा God gives a promise and then fulfills that promise. परमेश्वर एक प्रतिज्ञा देता है और उस प्रतिज्ञा को परमेश्वर पूरा भी It's our करता है। job to take the word, plant it in our heart and keep speaking it to our life. हमारा कार्य है कि उस वचन को लेकर हम अपने हृदय में बोए और मुंह से लगातार कहते रहें। Not only to ourselves, it says teach one another also about the word. न केवल अपने आप को सिखाएं मगर एक दूसरों को भी उन बातों को सिखाएं। See, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your heart to the Lord. और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाते रहो। Yes, that's what you're called to do. इसीलिए परमेश्वर ने आपको बुलाया How है। many hours in a day do you sing unto the Lord? कितने घंटे तक आप प्रभु के लिए गीत को गाते How हैं? often do you speak with your friends, your neighbors, your relatives about the Lord and sing with grace in your heart to the Lord? पिता परमेश्वर के बारे में अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों के साथ कितना समय आप व्यतीत करते हैं? And the next he says is, and whatsoever you do, अगला में वो कहता है जो कुछ भी आप in करो, word or in deed, वचन में या काम में, do all in the name of Jesus, सब चीजें करे उस यीशु मसीह के नाम से and giving thanks to the Father by him. और उसके द्वारा पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। So we must tell ourselves, whatever I do, अपने आप से कहें जो कुछ मैं do it करता in हूँ Jesus' name, मैं उस यीशु के नाम में करता हूँ thanks to the Father. और पिता को धन्यवाद देते हुए, And that is your borderline. और वही आपकी सीमा रेखा है। If some of the things you cannot do by giving thanks to the Father, अगर कुछ बातों को आप नहीं कर सकते पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, you can't speak some words and say, after speaking these words, I cannot give thanks to the Father for the words I've आप spoken. कुछ नहीं कह सकते, कुछ बातों को कह करके इस प्रकार मैं इन बातों को कहा हूँ, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, Because you are not speaking according to the will of the Father. क्योंकि परमेश्वर पिता की इच्छा पर नहीं कह रहे हैं। So that's why he's saying here, इसलिए वो यहाँ पर कहता है whatever you do, जो कुछ भी करते in हो, word or deed, ये वचन में या काम में, in the name of the Lord Jesus, उस प्रभु यीशु के नाम में आप करें giving thanks to the Father. और धन्यवाद देते हुए उस पिता Let परमेश्वर that का be our borderline. होने पाए, वो हमारे जीवन में एक सीमा रेखा के Not do समान। those things for which we cannot give thanks to the Lord. हम उन बातों को ना करें जिसके द्वारा हम प्रभु को धन्यवाद नहीं दे सकते हैं। Wives, submit yourselves unto your own husbands as it is fit in the Lord. हे पत्नियों, जैसे प्रभु में उचित है वैसे ही अपने पति से अधीन में रहो। So we see here, Paul is giving us so many admonitions. कई ऐसे सलाह को यहाँ पर पौलुस कहता है, Areas in which we need to obey the Lord. और उन क्षेत्रों में जहाँ पर उसकी आज्ञा का We need पालन to करना ask है। ourselves, am I being kind and loving and merciful, and am I having the peace of God? Am I having the word of God dwelling in me richly? Am I submitting to my wife, to my husband? Am I really doing everything in the name of the Lord? अपने आप से हम पूछने पाए, क्या परमेश्वर का शांति मुझ में है? क्या परमेश्वर की वो कार्य को मैं करता हूँ? क्या मैं पति से उस प्रकार अधीन में हूँ? इन बातों का आज्ञा मैं पालन कर रहा हूँ या नहीं? हम अपने आप को जांचने पाए। Now, if you find that you are a wife who cannot submit to your husband, अगर आपको लगता है कि आप एक पत्नी हैं और पति के अधीन में नहीं हो पा रहे अपने now जीवन में, if your husband is asking you to do things that are wrong in the sight of God, it's okay not to submit to him. अगर आपका पति कहता है उन बातों को करने के लिए जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं है, तो जरूरी है कि आप उस पति के अधीन में ना रहें, Because the Bible says it's better to obey God than to obey man. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यह बेहतर है कि परमेश्वर की आज्ञा का माने या I फिर want to show पति you का। that from the book of Acts. और प्रेरितों के काम में, Acts chapter 5 and verse 29. प्रेरितों के काम 5:29 में कहती To है, obey God rather than men. मनुष्यों की आज्ञाओं से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना So, हमारा but कर्तव्य है। in things where God would say, do whatever your husband is asking you to do, just do it.
और जो कुछ परमेश्वर कहता है कि आपका पति उस प्रकार करे, तो आप उसी प्रकार उन बातों को करें। If you can't do it, then you ask the Holy Spirit to help. अगर आप नहीं कर सकते हैं, पवित्र आत्मा से सहायता मांगे उसे करने के He's our लिए। helper. वो हमारा सहायक He will है। help us to do the will of the Lord. परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में This सहायता is the will करेगा। of the Lord for us. परमेश्वर की इच्छा ये है हमारे लिए। And with the help of the Holy Spirit, उस पवित्र आत्मा की सहायता sometimes से, maybe you don't like to submit, या फिर कुछ समय ऐसा होगा कि आप उसके अधीन में नहीं होना चाहते हैं, doing it for the sake of Jesus Christ. मगर आप करते हैं यीशु के Because you खातिर, love the Lord क्योंकि आप प्रभु से प्रेम करते and you हैं want to obey Him. और आप चाहते हैं कि उसकी आज्ञा का Lord, पालन I'm doing करें, it only for your sake. और आप कहते हैं कि आपके ही खातिर मैं कर रहा हूं, Then God will exalt you. तब परमेश्वर आपको उठाएगा। Wives, submit yourselves unto your own husbands as it is fit in the Lord. It's the right thing to do. हे पत्नियों, जैसे प्रभु में उचित है वैसे ही अपने पति के अधीन रहो हर वक्त। Husbands, love your wives and be not bitter against them. हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। In fact, husbands ought to love their wives as Christ loves the church. वास्तव में पति अपने पत्नी से प्रेम करे जैसे मसीह कलीसिया से And प्रेम he किया। says here very clearly, don't be bitter against them. Don't be mean and nasty and hurtful and say things which are bad to her. उनके साथ कठोरता में कभी बात ना करे, उनके साथ उन बातों को ना करे जो उनको ठोस पहुंचाती है उनके हृदय If में। you are like that, अगर आप उस प्रकार के हैं तो repent मन फिराए and ask the Holy Spirit to help you. और पवित्र आत्मा से मांगे कि उसकी सहायता Lord, करने help के me लिए। to have words that build my wife up. प्रभु मेरी सहायता कर ताकि मैं अपनी पति को बना सकूं। Help me to bless her with my word. मेरे शब्दों से तू मेरी सहायता कर कि उन्हें Because आशीष husband दूं। is kept in authority over the wife. क्योंकि स्त्रियों के अधिकार के तौर पर पति को रखा गया And है। if you're cursing your wife all the time, अगर आप अपने पत्नी को हर वक्त श्राप देते हैं you're तो, using bad words and hurtful words and making her sad all the time, और हर वक्त दुखी रखते हैं आपके शब्दों के द्वारा, आपके श्राप के द्वारा उनके जीवन में, then she will continue to be worse than what she is. तब वो स्त्री लगातार उस बुराई को करती रहेगी जो अभी करती है, उससे भी बढ़कर But वो it's in करेगी। your hands to build her up. मगर वो आपके हाथ में है कि आप उन्हें बना She सकते is a हैं। lazy person. You can bless her by encouraging her to do things with her and bring her into that spirit of excellence. अगर वो एक आलसी व्यक्ति है तो आप उत्साहित कर सकते हैं और उस आत्मा में ले आ सकते हैं जो आपके जीवन में एक जागृति का कारण होगा। Maybe you can help her in the kitchen a little bit and encourage her to do something better if you think what she's doing is not आप good. उनके लिए उनके रसोई घर में सहायता कर सकते हैं और आप उनको उत्साहित कर सकते हैं। अगर वो अच्छी नहीं बनाती है तो उस प्रकार आप उनकी सहायता करके उनको आगे बढ़ा She सकते is हैं। part of you. She is your wife. वो आपकी पत्नी है, आपका एक भाग है। She is your helpmate from the Lord. प्रभु की ओर से आपका एक सहायक If है you वो। treat her with respect अगर आदर के साथ उनका सम्मान करते हैं and तो, treat her with love, प्रेम के साथ उनका सम्मान करते हैं तो, the favor of the Lord will increase on your life. आपके जीवन में परमेश्वर की अनुकूलता और लगातार बढ़ते She रहेगी, will give you more help than she did last क्योंकि time वो और सहायता करेगी जितना करती थी उससे बढ़कर आपके जीवन to में, help you. आपकी सहायता के If लिए। she's not being a helper in your life, अगर वो आपके लिए एक सहायक नहीं है आपके जीवन में, ask the Holy Spirit, पवित्र आत्मा से Lord, पूछे, make her my helper. प्रभु तूने बना मेरे सहायक के तौर Help पर, her to be the person you want her to be in my life. जिस प्रकार तू चाहता है मेरे लिए जीवन में वो एक सहायक बनने You पाए। need to do what God asked मगर you. परमेश्वर ने जो कुछ कहा है वो आपको करना पड़ेगा। Asked you to love your wife. वो आपसे मांग की है अपनी पत्नियों And से प्रेम unless करो। you decide, it's not something that I'll try. No. You have to decide, I am going to love my wife no matter what. ये बात वो नहीं कि आप कोशिश करेंगी, मगर आप लगातार उनसे प्रेम करेंगी। No. Your help is from the Lord to love your wife. अपनी पत्नी को प्रेम करने की सहायता परमेश्वर की ओर से है Love never fails. और प्रेम कभी पराजित नहीं होता। And good things will happen when you love your wife. और जब अपनी पत्नी से प्रेम करेंगे भले चीजें आपके जीवन में पूरी होगी। And from today, don't speak bitter words against you. इसलिए आज से कभी भी अपनी पत्नी की ओर कड़वे शब्द इस्तेमाल अपने जीवन में कभी न करें। As Christ loved the church is not perfect, but Jesus loves us. कलीसिया सिद्ध नहीं है मगर फिर भी मसीह ने हमसे प्रेम किया है। Through his love, he is bringing perfection to the church. उस प्रेम के द्वारा ही उस कलीसिया को वो सिद्धता की ओर ले जा रहा है। Goodness of God that leads you to repentance. उस भलाई जो परमेश्वर की ओर से है वो आपको मन फिराव की ओर God ले is जाता so है। good to us परमेश्वर इतना भला हमारी that ओर we want to repent from all the wrong words and wrong thoughts and wrong actions and follow the Lord.
और सभी बातों से मन फिराकर उन गलत कामों से, गलत शब्दों से, गलत विचारों से और तेरा अनुकरण करना Your चाहते हैं wife, as प्रभु। Christ loves the church, there is no way she would want to turn her back on you. आप पत्नी से प्रेम करें जिस प्रकार मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, जरूर वो पत्नी वापस आपकी ओर She मुड़कर will प्रेम be करेगी। so confident in your love, आपकी प्रेम की ओर वो बहुत ही धैर्यवान and so होगी secure in your love. और आपके प्रेम में सुरक्षित होगी वो। Whatever is lacking, she will soon try to be a better helper than she was. जो कुछ कमी उसके जीवन में है उसको हटाकर एक बेहतर पत्नी के तौर पर अपने आप को बनाकर आपके सहायक के Since we're तौर पर out of time, रहेगी। we want to stop right now and we want to pray for husbands and wives. जैसे हम समय से आगे निकल चुके हैं, इस समय हम पति और पत्नी के लिए इस प्रकार विशेष प्रार्थना करना And चाहते हैं। before that, you just see that the word of God, if your heart is void of the word, अपने आप को देखें, क्या परमेश्वर का वचन से आप काफी दूर हो see, it's चुके हैं not कि नहीं? good to keep your heart empty, because then that will give you room for the devil to come and occupy. कभी अवसर ना दे अपने हृदय को खाली रखने के लिए, क्योंकि ऐसा है तो शैतान आकर उसको आक्रमण कर सकता And है you will not be walking in the wisdom of God. और परमेश्वर के ज्ञान में आप कभी नहीं चल पाएंगे उस प्रकार। So, it's very important for you to fill your heart with the word. इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने हृदय को उस परमेश्वर के वचन से Make up भर your लें। mind from today to spend time with the word, meditate on the word, and keep the word in your heart. अपने आप को तैयार करें, उस वचन को मनन करें, उस वचन में रहें और उस वचन के अनुसार चले हर वक्त। And you must let the peace of God rule in your heart. होने पाए कि आपके हृदय के ऊपर परमेश्वर मसीह की So शांति let's राज्य pray करे। for all these इन things. सभी बातों के लिए आइए हम प्रार्थना We'll pray करें। that the nature of Jesus be seen in us. होने पाए मसीह के उस स्वभाव हमारे जीवन में देखा जाए The fruit of the Spirit. और जो आत्मा के फल हमारे The जीवन में, new man, the qualities of the new man. वो नया व्यक्ति की उस नई खूबियों को हम We चाहते हैं। want it to be seen in our lives. हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में वो देखा So जाए। let's pray. आइए हम प्रार्थना Father, करें। we come to your presence in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आपकी We उपस्थिति want में to pray आते for हैं। families that are going through a hard time right now. हम परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जो कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं इस Between समय। husband and wife, if there is strife and dissension, अगर पति और पत्नी के बीच में कोई भी उलझन है तो इस समय we pray that you will come with your peace. हम प्रार्थना करते हैं तू अपनी शांति के साथ आए। Apply the blood of the cross on these marriages. उस क्रूस के लहू को हम उस विवाह में छिड़कते हैं All प्रभु। disappointments may be wiped out through the power in the blood of the Lamb. हर एक निरुत्साहना उनके जीवन से दूर होने पाए उसके लहू और मेमने के Father, we द्वारा। are praying that the peace of God would descend in every marriage. हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की शांति हर एक पारिवारिक जीवन में उतरने Pray पाए। husbands and wives will start giving thanks to the Father for each other. हम प्रार्थना करते हैं आपस में वो इस प्रकार धन्यवाद करने पाए उस पिता परमेश्वर का। Father, I pray they will look and find in each other things which are appreciable and things which can be, Lord, which made them happy initially. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी वो आपस में देखने पाए अच्छे बातें उनके जीवन में और उसको सराहने पाए उनके पारिवारिक जीवन में। Lord, you've said in your word, live joyfully with the wife of your ये youth. वचन कहता है प्रभु जवानी की अवस्था में अपनी पत्नी के साथ आनंद के You are साथ रहें। watching over marriages, Lord. It's a covenant before your sight. प्रभु तू विवाह की ओर देख रहा है किस प्रकार की वो एक वाचा के तौर पर बांधा गया I आपके pray सामने। husband and wife will live in the fear of the Lord. मैं प्रार्थना करती हूँ कि पति और पत्नी परमेश्वर के भय में They will रहें। not speak words which you don't want to hear. वो कभी उन बातों को इस्तेमाल ना करे जो तू कभी नहीं चाहता सुनने के I pray लिए। they will live in peace and harmony and love with one another. प्रार्थना करते हैं आपस में वो शांति के साथ प्रेम के साथ अपने जीवन को And they व्यतीत will करें be thankful for each other. और वो आपस में हर वक्त एक दूसरे के लिए Be धन्यवाद करते singing रहे psalms and hymns and spiritual songs one to another. और एक दूसरे की आपस में वो गीत और भजन और कीर्तन के साथ रहे हर Give वक्त। grace to every wife to submit to her husband. हर एक पत्नियों को अनुग्रह से भर दे ताकि वो पति के And अधीन give हो। every husband the grace to love his wife. हर एक पति को अनुग्रह से भर दे अपनी पत्नियों से प्रेम And करने never के to लिए be bitter towards them. और उनकी ओर कभी कठोर ना होने पाए। We want to thank you, Father, हम धन्यवाद देते हैं that पिता। marriage was instituted by you और विवाह आपके द्वारा नियुक्त किया and गया it's था holy in your sight. और आपके दृष्टि में वो We पवित्र है। want to give you praise. हम तेरी स्तुति करते हैं, We want to give you thanks. हम आपका धन्यवाद करते That I हैं। pray husband and wives will be kind to one हम another, प्रार्थना करते हैं कि पति और पत्नी एक दूसरे के लिए नम्रता के साथ giving one रहें, another, आपस में एक दूसरे को क्षमा करने being पाए, merciful to one another, एक दूसरे से करुणामय होने पाए हर वक्त, being patient with one another. आपस में एक दूसरे से नम्रता के साथ वो रहें अपने Ask जीवन it में। all in the name of Jesus, the risen Lord. हम ये सभी कुछ मांगते हैं यीशु मसीह जो पहले जी We उठा know है। it is your
will, Lord, that we should walk in love. हम जानते हैं प्रभु ये तेरी इच्छा है कि तेरे प्रेम में चले हम। Help us, we pray, हमें तो सहायता कर to प्रार्थना करने walk की in a greater degree in love, और प्रेम के बड़े स्तर में हम चलने loving पाए, you and loving one another. आपको प्रेम करते हुए और दूसरों को प्रेम करते We हुए। ask it in Jesus' precious and matchless name. यीशु मसीह के सामर्थी और अद्भुत नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन। It's so important to live in peace in your home. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अपने घरों में शांति के साथ रहें। Only by pride comes contention, और घमंड के द्वारा ही वो नाशमान आती है, and pride comes from Satan. और घमंड आती है शैतान की ओर से। Satan fell as lightning because of pride. और शैतान गिरा उस घमंड के द्वारा ही। So crucify pride and live in love from today. उस घमंड को हम क्रूसित करें और आज से हम उस प्रेम में जीवन व्यतीत करें। Jesus be seen in and through your life. होने पाए मसीह देखा जाए हमारे जीवन से दूसरों Till we की ओर। meet again, जब तक हम फिर से नाम लें, rejoice in Christ मसीह में and आनंद लें। meditate on the word उस वचन को मनन and करें, hide the word in your heart अपने हृदय में उस वचन को and छुपा be लें। it unto you according to the word. God bless you.